in working with a missionary purpose to provide the urban cooperative banks with the cutting edge of technology that will help the banks to face competition of bigger players in the banking industry. The vendors, I am sure, will be guided by feeling that they have chosen to helping cooperative institutions which are organized primarily to provide services to less privileged sections of the society. And it is my belief that they will be approaching this challenge with a sense of purpose that it goes beyond normal business consideration of making only profits. The CBS enabling mission, I would say that this is perhaps the first significant and major eligibility criteria for RTGS was relaxed. A committee has been formed by Reserve Bank of India to look into the licensing of new urban bank license. Besides taking initiative in technology and CBS for urban cooperative banks, the Federation has undertaken to encourage research work on topics on urban banking, urban cooperative banking sector and cooperative sector in general in the universities. That has resulted in more than 20 research scholars have taken up PhD works in the last 6 months. I will be failing in my duty if I do not thank Honorable Minister for pursuing and introducing two major legislations in cooperatives. One is the amendment to the Constitution to make cooperative laws of the states to follow certain constitutional parameter, and the other to amend the Multi-State Cooperative Societies Act 2002, a bill for which is ready to be introduced in the Parliament. We have to thank Honorable Agriculture Minister for taking keen interest in these bills and for introducing the provisions of rehabilitation of weak or sick societies by creating a fund for the purpose, which is a revolutionary initiative. I once again reiterate that this is the historic launch for the sector, must be made an unqualified success and should see a large number of banks to become CBS enabled. This launch is possible to make it in this big way. The people behind this are many who have worked for the success of this program with Mr. Jyotindra Mehta, for whom I am really thankful. In conclusion, I thank all of you for having come to this launch program and for keen interest in deciding to look at what the vendors have in offer and choosing the best solution for individual bank. I wish the CBS solution adoption a success, through which, as Mr. Jyotindra, the chairman of the subcommittee on CBS, has mentioned, it is a revolutionary initiative, it is a revolutionary action, it is a revolutionary adoption, and this revolutionary adoption will change the face of our urban cooperative banks and thereby meet the expectation of our cooperative members. Thank you so much. थैंक यू पाटिल सर। जब ट्राई पार्टी एग्रीमेंट की बात हो चुकी है तो मंच के सभी महानुभावों के आशीर्वाद मिले, इसलिए मैं विनती करूंगा थिम टेक्नोलॉजी वाले मिस्टर कांतिनाथन जी, सिटीजन बैंक जालंधर से के शर्मा जी, आदरणीय दिलीप भाई संगानी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन गुजरात, अभी आके सभी को संबोधित करेंगे। दिलीप भाई संगानी जी। नासकप के इस सेमिनार में उपस्थित
हमारे राष्ट्रीय कृषि मंत्री परम आदरणीय शरद पवार जी, संस्था के अध्यक्ष आदरणीय ए.के. पाटिल जी, गुजरात के चेयरमैन ज्योतिंद्र मेहता, हम प्यार से मामा के नाम से जानते हैं सब, वाइस चेयरमैन हमारे दोस्त डॉलर भाई कोटेचा, अभी आपने सुना रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में मिस्टर कामत जी को, मंच पर उपस्थित पदाधिकारी अधिकारी, कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर से आए हुए गुजरात और गुजरात के बाहर से आप सब सहकारी के धनी आदरणीय प्रतिनिधिगण, बैंकिंग सेक्टर कोर ग्रुप से क्या फायदा होगा, आधुनिक तकनीक का उपयोग से लोगों को क्या सुविधा प्राप्त होगी, इनके बारे में सविस्तृत माननीय ज्योतिंद्र भाई और पाटिल साहब से हमने सुना है। बैंकिंग क्षेत्र कोऑपरेटिव सेक्टर में आरबीआई का क्या रोल है वो भी हमने सुना। बैंकिंग सेक्टर आने के पहले सहजता से यहाँ उल्लेख हुआ, शायद ज्योतिंद्र भाई ने कहा हमारा कल्चर एग्रीकल्चर जो है, मानव जाति का प्रथम कदम की बात जब की तब मैं सोच रहा था, तब विनिमय प्रथा क्या थी, उनके साथ सहजता से मानव अपनी सिक्योरिटी कहाँ मिल पाएगी, बचपन से बड़ी उम्र होने तक हमारी सुविधा कायम रहे, इनकी व्यवस्था कौन सी स्थिति में रहेगी, ये सोच कभी नहीं मिट पाती। और उसी टाइम जब आज अति आधुनिक करेंसी के रूप में हम कागज या प्लास्टिक के रुपीज या डॉलर की नोट देखते हैं, उनके पहले अनाज के रूप में, पशुधन के रूप में विनिमय प्रथा थी। तब आज की स्थिति में जो ब्लैक मनी कहते थे शायद नहीं होगी। निष्ठा और पारदर्शिता से जो काम उसी टाइम में चलता था, आज शायद अंगुली बार बार उठती है। और जब तक मानवता में पारदर्शिता अपनी नीति नियत साफ नहीं होगी, तब तक काफी प्रश्न भी उठेंगे, उनके सॉल्यूशन बार बार करेंगे तो भी प्रश्न मिट नहीं पाएगा। और ये प्रश्न उठाने के लिए जो संजोग होते हैं, सॉल्यूशन करने के लिए जो कानून होते हैं, इनसे मुक्ति मानव जीवन में मिलने की संभावना तत्कालीन मिल जाती है, अंतिम नहीं हो पाती। और अंतिम टेक्नोलॉजी हम कह भी नहीं सकते। आज की टेक्नोलॉजी कल पुरानी होगी ही होगी। जब बैंकिंग सेक्टर शुरू हुआ होगा दुनिया में, तब की स्थिति, उनकी प्रगति और प्रगति के बाद आज अति आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए हमारे ज्योतिंद्र भाई काफ़ी टाइम से जुटे हुए थे, पाटिल साहब ने सहयोग दिया। आज पूरे देश में
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एक दिशा के माध्यम से चल सके, कोई भी लोग इस टेक्नोलॉजी के बैंकिंग सेक्टर में काम कर सके, वो स्थिति आई है। लेकिन मुझे आपसे जानकारी लेनी है, कभी आपको कुछ आवाज़ देने की जरूरत पड़े तो सहयोग की अपेक्षा रखूं तो कुछ गलत नहीं होगा। मित्रों, मुझे जानना है, कोई कानून देश में ऐसा हो कि एक व्यक्ति, एक संस्था, एक जाति के साथ अलग और दूसरे के साथ अलग, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होना चाहिए, सब मानते हैं। यदि कोऑपरेटिव बैंक या नेशनल बैंक या इंटरनेशनल बैंक इस देश में काम करती है तो किसके लिए करती है? मैं मानता हूं कि भारतवर्ष की जनता के लिए काम करती है। इनमें गलत है तो मुझे रोकना। कोई भी बैंकिंग क्रेडिट स्ट्रक्चर काम करता है तो भारतवर्ष के लिए काम करता है, ये बात तो सही है ना? यदि कोई बैंक की आर्थिक स्थिति कष्टदायक हो या अभी वीकनेस कहो कुछ आ गई, तो उनको मदद करने का धोरण, नीति एक समान होना चाहिए या दुगना होना चाहिए? यदि कोई नेशनल बैंक वीकनेस आ गई, इतनी अफवाह आ जाए तो रातों रात मिडनाइट आरबीआई आ जाएगी, कोई चिंता मत करो, हम बैठे हैं। और यदि कोऑपरेटिव सेक्टर की बैंक ये वीकनेस आ रही है, हमें कुछ आश्वासन दीजिए, हमें कुछ मदद कीजिए। एक नहीं, पूरे देश के कोऑपरेटिव सेक्टर के कार्यकर्ता जाके एक बार नहीं बार बार कहे, उनकी बात सुनाई न दे, फिर कहे कि 4% है पूरे इतने बड़े सेक्टर में। मुझे जानना है आप सबसे, कभी मेरा अज्ञान होगा, आपको कहीं कोई राज्य में कोऑपरेटिव सेक्टर में पार्लियामेंट की ओर से या सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट मिला है? सही नहीं मिला तो और बैंकों को मिलता है, पता है आपको? मुझे पता है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है अमरेली से 4 दफा पार्लियामेंट में बैठने का। 4 दफा पार्लियामेंट में मैं चुन के गया हूं, तो मैंने देखा है कि कोऑपरेटिव सेक्टर की कोई नहीं सुनते। वो तो गरीब लोगों का, आम लोगों का, किसानों का, छोटे व्यापारी का काम करती है। और नेशनल बैंक का कहा कि मोबाइल लेने में आसान है, बैंकिंग में अकाउंट लेना। कोऑपरेटिव में ऐसा है, आप आते हैं तो उनका अकाउंट खोल देते हैं। ये दिक्कत कहाँ की है? नेशनल बैंक और अदर बैंक की। और वहाँ सपोर्ट मिलता है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। मित्रों, ये दुबारा नीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाहे क्रेडिट स्ट्रक्चर हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग कोई भी हो, ये देश की जनता के लिए काम करती है। समानता होनी चाहिए, ये मांग पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर की है। मित्रों, यदि आपने आपका इंश्योरेंस ले लिया, घर जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका पांव टूट गया, आप हॉस्पिटल चले गए और इंश्योरेंस के मुताबिक आपको पैसा मिल गया, और फिर हॉस्पिटल में अच्छी सारवार हुई, 1.5 महीने के बाद आप चलने लगेंगे, फिर इंश्योरेंस कंपनी आएगी कि आप चलने लगे, आप मेरे पैसे वापस लाओ। आती है? सुना है कहीं? एक कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है? अब सेक्टर की बात हुई तो कहीं ऐसा सुना है कि आप बैंक में कोई भी पैसे रखो, 5 लाख रखो, इंश्योरेंस 5 लाख का देना पड़ेगा, यदि दिक्कत हुई तो आपको कितना मिलेगा? 1 लाख।
ऐसा दुनिया में कहीं है? तो कहाँ चल रहा है? क्यों चला रहे हैं? कौन चला रहा है? ये समाप्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?